गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर मी टुडे। एंड फॉर मी आई एम ब्लेस्ड टुडे दैट आई हैव विथ मी अ गेस्ट, not a guest but like a father figure, a mentor, a godfather, a friend, a brother who has taken the trouble. And I am so touched with this gesture that he has taken the trouble of coming all the way to the studio and walk from his car to the studio to be here with me today and speak a few words. And I would like to introduce you to my friend, brother, godfather, mentor, and to Mr. Vasu Shroff. Mr. Vasu Shroff, welcome to the show, and I'm so happy that you have been able to come all the way in spite of everything in your health, and you have decided to make it, and that shows your love for me and affection for me, and I will eternally be blessed and touched for it. Thank you. Thank you very much, Radhalal. I'm delighted to be in this building after a long time, and such interview and such a nice studio I have to see first time in my Dubai life. Well decorated studio, and your introduction here is a really privilege to me. You invited me to introduce you. I remember when I used to go to school, we had in our country Jawaharlal. After that, शास्त्री गुलजारी लाल शास्त्री जो शास्त्री बने वो भी लाल थे। तो आज दुबई में हमारे पास एक राजन लाल है। हाँ, ये तो यार ये कमाल का आपने सिमिलरिटी निकाला फ्रॉम जवाहरलाल टू गुलजारी लाल टू तीन लाल थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो इन दुबई यू आर लाल आल्सो। तो लालों को लाल माना है। प्रिविलेज दैट एटलीस्ट यू विल लव बाय द पब्लिक पीपल फ्रेंड्स दिस। You are not a common small man, but when I met you through our common friend Sunil Dutt Saab in Bombay, luckily, and from that day we became good friend. And I know, and I study you. I'm 84 now, in Dubai 72 years. 1952 we came here. When Dubai we had donkeys and camels, and no other facilities. But question is that how we came. This I cannot say. We had to ask my brother. Brother cannot say he has to ask my father. But Dubai has become so lucky for the people, those who are coming here. If I tell them my life, how miserable, but how happy we were in 1952, something good. But after that, when the people coming settle down here, and what I see Dubai now, it is dream has come true. I never dreamt that Dubai will one day will become like this. Because in the olden days we had not a single building, not a single car, no electricity, no water, no telephone, no road, nothing. Evening 6 p.m. we had to kill the Petromax and Lalten, this, that, and we had to live that way. So meeting you, it reminds me that friend is friend. So I have selected so many friends. I have been now school, club, chemistry ground, Sydney Center, Texmas. I'm socially involved with the Indian community, Indian association. But when you meet friendship circle, you have to be selective who is your good. दिल का हाल सुने दिल वाला। तो जिसको दिल की बात बताई जाए वो दैट इज रियली अ गुड फ्रेंड। दोस्त तो बहुत मिल जाते हैं, बिल्कुल दोस्त तो बहुत मिल जाते हैं, बट दिल वाला तो दोस्त चाहिए। विच वन ऑफ यू देखो आपके पेरेंट्स का नाम पीछे लाल दिया है। लाल माना लाडला बेटा होता है, लाल माना हीरा भी होता है। तो वो गुण मैंने आप में पाया जो आपने ज़िंदगी में सोचा था कुछ बनने के लिए। मैंने भी सोचा था दुबई व्हेन आई कम दुबई आई विल बिकम समथिंग। टुडे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ माय पेरेंट्स ब्लेसिंग, the status I got here, you know that. you are one of the pillars of Dubai, Dada. You are one of the main pillars of Dubai when you made, and you know what you came with in 52 and how you lived and how you worked hard and succeeded. And today you have become a name in the city. People not only name, but they respect you and they look up to you with respect. ज़िंदगी में क्या है कि एक पैसा कमाना और एक है इज़्ज़त कमाना। पैसा तो सब लोग कमाते हैं, लेकिन आपने जो इज़्ज़त कमाई है दादा, वो सब जैसे मेरी इज़्ज़त है। आपने जो जो किया है और जितने आपने शायद 130 साईं बाबा मंदिर बनाए हैं, ये किसी को मालूम नहीं है।
आप 130 मंदिर बनाए हैं दुबई में, इंडिया में, अब्रॉड, और आपने ये क्रेमेटोरियम जो सोनापुर है अपना, सिर्फ एक ही है, वो भी आपने बनाया है। अभी ये जो हिंदू मंदिर जो टेम्पल जो खुला है जबल अली में गुरुद्वारा के पास, ये भी आपने बनाया है। और कितनी चीज़ें और कितनी चैरिटी और कितने लंगर चलते हैं, मैंने आपसे देखे, आँखों देखे। और आप जितनी श्रद्धा रखते हो साईं बाबा की, जो मैं भी भक्त हूँ, और मेरे को अपना ख्याल आता है जब कि साईं बाबा की मूर्ति की मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूँ आपको, कि दादा हैड सीन माई साईं बाबा मूर्ति बॉम्बे में थी 8 फुट की, 8 टन की। तो दादा एक दिन आए मेरे को, राजन तुम्हारी मूर्ति बॉम्बे की तुम्हारे घर पे पड़ी हुई है, सड़ रही, क्या हो रहा है? तो मैंने अपना ऑफिस बेच दिया था, बंगला भी बेचने को था। मैं कहा दादा आप ये मूर्ति ले जाइए और किसी मंदिर में दान करनी है। कहते नहीं नहीं नहीं, ये बाबा जो है ये तुम्हारे पास आएंगे दुबई में। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो दादा, ये बंद कैसे आएगी? उस वक़्त के ज़माने में 19 इंच की मूर्ति से ज़्यादा नहीं आ सकती थी, करेक्ट है? तो मैंने कहा दादा आप ये बात छोड़ दो। कहता है तो मेरे पे छोड़ दो ना यार, लेट्स। मैंने कहा ठीक है। एक हफ्ते के बाद दादा का फ़ोन आया, मूर्ति को एयरलिफ्ट कराओ। मैंने कहा यार 8 टन की मूर्ति है, क्या बात कर रहे हो? कहता है मैंने बोला ना एयरलिफ्ट कराओ। तो मैंने बंदोबस्त करके एयरलिफ्ट करा दी। 8 टन की मूर्ति दुबई एयरपोर्ट पे आ गई। वहाँ पे वो लोकल अमीराती थे, आपके दोस्त, मैं नाम उनका भूल, याकूब, हाँ याकूब, उन्होंने मूर्ति क्लियर कर दी, ड्यूटी दी, सब कुछ ही। मूर्ति आ गई घर के बाहर। घर के बाहर दरवाजे के बाहर वो मूर्ति मेरे ख्याल कोई 15 दिन या 1 डेढ़ महीना पड़ी रही, वो हिल नहीं सकती थी। तो मैंने दादा को बोला, मैंने कहा यार मूर्ति आ गई तो चमत्कार हो गया। तो कहते हैं अभी मैं इसको ये मंदिर में लगा रहा हूँ। कहते ये मंदिर जो है इसको तुम हाथ मत लगाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल बिल्ड दिस मंदिर, यू विल नॉट स्पेंड अ पेनी। मैंने कहा ठीक है। फिर इन्होंने अपने आदमी लगाए और वो मूर्ति को दरवाजे तक, मंदिर के बाहर लाने तक मेरे ख्याल 8-10 घंटे लग गए होंगे, इतनी भारी थी। रोलर्स पे जो भी किया। उसके बाद अंदर मूर्ति के 3 स्टेप्स बनाए थे उनकी स्थापना करने के लिए। वो 3 स्टेप्स जो थे वो कैसे ऊपर गई मूर्ति, वो ट्रॉली या पुली लाए, उस मूर्ति को उठाया, इतना 8-10 घंटे लगे उसको स्थापना करने में। उसके बाद पूरी इन्होंने मंदिर बनाया खुद अपने खर्चे पे, ही डिड नॉट लेट मी स्पेंड। और आज वो मंदिर जो है एक स्थान बन गया है। और वो मंदिर के आने के बाद हमने जब प्राण प्रतिष्ठा भी की अभी उसकी मूर्ति की, तो मंदिर दादा आते हैं, थर्सडे को आते हैं, बैठते हैं वहाँ पे, फिर उसके बाद हम बैठते हैं, गपशप मारते हैं। पर जब से ये मूर्ति आई है और दादा के अंदर पता नहीं क्या एक शक्ति है, क्या है, कि इस घर की जो एनर्जी है वो पूरी बदल गई है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी हो गई उस घर में कि जो भी आता है अंदर फील करता है कि यार कुछ घर में थोड़ी एनर्जी बहुत पॉजिटिव। मैंने कहा ये सब दादा का करतूत है। आपकी फ़ोटो भी मैंने वहाँ बाजू में रखी हुई है। और मेरे को जब भी आते हैं, 16 के महाराज जब भी आए थे, वो आते हैं अपने आप आ जाते हैं। वो भी आप पॉडकास्ट किया है आपके, हम आपके बारे में यहाँ लास्ट वीक बात कर रहे नहीं थे, कहते। आपने सुना होगा। तो जो इज़्ज़त है सबकी, इनकी 16 के महाराज की, शिरडी के जो हेड प्रीस्ट हैं, और दादा की, मैं तो खैर इनका कायल हूँ। और जो ये एक होता है ना कि आप जब एक सिटी में जैसे दुबई में और एक दूसरे कंट्री में, वहाँ पे जब आप कॉन्फिडेंट क्यों फील करते हो कि आपको पता है कि आपके हाथ के ऊपर एक छत्र छाया है, एक हाथ है, एक प्रोटेक्टर है आपका। ये मुझे फील होता है इधर दुबई में कि भाई दादा हैं पीछे, यार ठीक है दादा हैं पीछे। सो दैट फीलिंग इज सच ए ग्रेट फीलिंग टू गेट, एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव यू इन माई लाइफ एंड आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू। और इतना दान पुण्य, चैरिटी, गुड हार्ट, हेल्प तो भूल जाओ ना। इनके घर पे जो जाता है, ऑफिस में जाता है, खाली हाथ नहीं आता। ये घर पे आते हैं तो खाली हाथ नहीं आता। ये किसी को खाली हाथ जाने नहीं देते और खाली हाथ आने नहीं देते। ये इस टाइप के हैं। दादा आप कुछ बोलिए। मैं तो आया था आपके बारे में बात करने, आप तो मेरे बारे में बात कर रहे हो। मैं तो दादा आपको इस बारे में जितना बात करूँ उतना। तो मुझे तो बुलाया गया तो भाई राजन लाल के बारे में कुछ बोलो, तो मैं तो उसके बारे में बोलने वाला था। चलो ठीक है, आपको जो कुछ मेरे बारे में मालूम था, मालूम है,
आपने कुछ बताया, सच है। मेरा एक एम रहा है, हाउ आवर कम्युनिटी कैन यूनाइटेड। यस, तो यूनाइटेड करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? स्कूल खोलना पड़ता है, क्लब खोलना पड़ता है, और एसोसिएशन खोलने पड़ते हैं जहाँ हम लोग आपस में मिलें, आपस में बात करें। तो क्लब में लोग देखिए 4-5 हज़ार मेंबर हैं, स्कूल में 16,000 बच्चे हैं, क्रिमेशन में डेली कोई ना कोई केस आता रहता है, टेक्सटाइल मर्चेंट एसोसिएशन है, सिंधी सेंटर है, सिंधी क्रिमेशन ग्राउंड है, पिलग्रिम है हमारा। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी कम्युनिटी को मिलाती हैं आपस में। दुख सुख में लोग कहाँ जाए, वेयर टू नॉक द डोर। बिल्कुल तो आपको कभी कोई तकलीफ होती है, क्या बोले जाओ वासु के पास। बिल्कुल। तो वास्तु के पास जाने में मतलब क्या होता है, एटलीस्ट रेमेडी। यस, मुझे मालूम है किसको कहाँ गाइड करना है, और मेरे बचपन में ये था। क्योंकि 1 to 10 जब आप होते हैं, उम्र में बच्चे होते हैं, 10 to 20 आपकी जवानी आती है, 20 to 30 आप शादी करते हैं, 30 to 40 आपके बच्चे होते हैं, 40 to 50 बच्चे बड़े होते हैं, 50 to 60 बच्चे कॉलेज चले जाते हैं, 60 to 70 आप बुढ़े हो जाते हो। उसके बाद आपको सहारा कौन सा चाहिए? बच्चे बाहर चले गए, एक दोस्ती, एक सहारा जो शाम को बैठ के आपके लिए होते हैं, ये दोस्ती। ये और शोले फिल्म में गाना था ना, ये दोस्ती। या तो ये जो दोस्ती है ना, बड़ी नसीब वालों को अच्छे दोस्त मिलते हैं, कहीं धोखेबाज मिलते हैं, कहीं धोखेबाज मिलते हैं। वो एक्सपीरियंस आपका भी हो, मेरा भी है। क्योंकि जो सीने में छुरा भोग दे, वो दोस्त नहीं रहता ना। दोस्त जो हर हाल में रात को 2 बजे फ़ोन करो तो आ जाए, दोस्त के से अपॉइंटमेंट लेनी नहीं पड़ती। दोस्त के घर चले जाओ, घंटी मारो, मैं आया हूँ, दरवाज़ा खुलेगा। दोस्त लोग अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, और दोस्त को वो करना चाहिए कि जो 24 घंटे आपके साथ, आपके दुख में साथ दे। और मुझे वो अच्छी लगता है कि व्हेन आई मीट द कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी हो, मेरा काम इन सबको मदद करना। ईश्वर ने, खुदा ने जो सक्सेस दिया, मेहनत की मैंने बड़े भाई के साथ, दूसरे भाई के साथ, और उस मेहनत का फल ये है कि मेरे 2 बेटे अभी काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग रियल एस्टेट, डूइंग वेरी वेल। ताज बनाई, 118 बनाया, दूसरी बिल्डिंग बनाई। गॉड ब्लेस देम, आई एम हैप्पी, दे आर हैप्पी, आई एम हैप्पी। शाम होती है, आप जैसे दोस्त बुला लेते, चलो चलते, चलो चलते हैं। शाम गुजर जाती है दोस्तों के द्वारा, फिर चिंता करने को हमें को टाइम मिलता ही नहीं ना। लोग बोलते हैं, आर यू डू थिंक समटाइम्स, आई नेवर थिंक, व्हाई टू थिंक, बिकॉज टाइम पास करने के दोस्त हैं ना। तो आपने बोला लिया, हम आ गए, इसके बाद दूसरे दोस्त ने बुलाया, चले गए, शाम को क्लब में चले जाएंगे। तो दोस्ती का मतलब ये होता है कि आप निभाओ उसको। इट्स नॉट मनी मैटर, व्हाट यू आर आई डू नॉट नो। करेक्ट। ऐसे कई लोग यहाँ पर दुबई में हैं जिनके पास अनगिनत पैसा है, वो मेरे दोस्त नहीं है, वो मेरे दोस्त नहीं है। मेरा दोस्त मेरा ड्राइवर है, मेरा दोस्त मेरा चपरासी है, मेरा दोस्त मेरा क्लर्क है, मेरे दोस्त मेरे बच्चे जो मेरे यहाँ काम करते हैं। आई एम फॉर द मासेस, नॉट फॉर द बॉसेस। यस, जितनी जनता में उनके लिए हूँ, और इंडियन कम्युनिटी के लिए, या कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी किस प्रकार से मेरे पास आ जाए, बिजनेस सेटअप करनी है कि बिजनेस क्या करना है, सलाह मशवरा देने में अच्छा हूँ। पर तो समटाइम कम्युनिटी को ऐसे जोड़ के रखा दादा। अभी जैसे आप बात कर रहे थे, इंडिया क्लब जो है, ये आपने फाउंड किया है। इंडियन हाई स्कूल है, जो स्कूल है जिसमें इतने 16,000 बच्चे पढ़ते हैं, वो शेख राशिद ऑडिटोरियम है। ये जो चीज़ें आपने की है इंडियन कम्युनिटी के लिए, इट इज़ एब्सोल्युटली, आई कांट इवन मेंशन इन वर्ड्स कि भाई आपने क्या काम किया है इतना बड़ा। और सब इंडियन कम्युनिटी दुबई की जितनी भी है, आपको इतनी इज्जत से और सर आँखों पे रखते हैं कि आई कांट टेल यू। एंड दिस इज़ द गुडविल दैट यू हैव अर्न विथ योर गुड डीड्स एंड एवरीथिंग। एंड दैट इज़ वाई आपने राइटली कहा कि सब दोस्त सब हैं, लेकिन जो जिगरी दोस्त हैं, वो जो असली हैं, जो दिल से दिल मिलते हैं, जो आप पहचानते हो उनको, वो आपको मिलते हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई यू आर हियर टुडे, for especially came all the way to do the podcast. It shows your love for me, and that is what touches me, because I love you so much and care for you and respect you so much. तो ये दादा एक वो पता नहीं क्या है, या साईं बाबा का देन है या कुछ है, अपना जो कनेक्शन है ना, वो एक अजीब सा है। अब ये मेरी बुक जो है दादा, ये मेरी अभी प्रिंटिंग हो गई है, आई डिड इट माई वे। इसमें आपका काफ़ी पहली कॉपी मुझे मिली, पहली कॉपी 1 नवंबर बाबा चंद्र को दिवाली के दिन में ये कॉपी आई, और दादा बाहर जा रहे थे और ये कॉपी हाथ में आ गई उनके हाथ में। मैंने बाबा चंद्र में रख दी। ये उन्होंने बोला कि बाबा के पाँव में रख दो 1 हफ्ते के लिए, और आपको ये मैसेज मिल जाएगा। तो मैंने ये किताब रख दी, फर्स्ट कॉपी आई। अब ये इसको क्या बोलते हैं? आप आए थे पार्टी पे फर्स्ट को, बाहर जा रहे थे, जाते वक्त सामने से वो आ गया, वो बोला दादा ये कॉपी, फर्स्ट कॉपी दादा ने पकड़ ली।
अब ये चीज़ों को क्या बोलोगे, इफ इज़ नॉट माई ब्लेसिंग देन व्हाट इट इज़, दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो ये किताब अभी प्रिंट पे है, अभी मेरे ख्याल दिसंबर जनवरी में इसको रिलीज़ करेंगे। अच्छा, और ये आप आओगे इसमें ख़ास फंक्शन पे और आप इसको, ये किताब लिखने का, बनाने का आपके दिमाग में कब आया ये दादा एक स्टोरी है 4 साल पहले से, मैं 4 साल से लिख रहा हूँ ये किताब। बिकॉज आई नो यू सो मच अटैच टू मदर, आई नो, और एंड दिस आई हैव डेडिकेटेड हमेशा अपने माँ की बहुत सेवा की, माँ की। मैंने 35 साल सेवा बहुत की है, बहुत सेवा की, और शी इज़ बीन माई योर पिलर। डे एंड नाइट विथ हर, डे एंड नाइट विथ हर। यस तो ये किताब लिखने की, मेरी जो किताब लिखी है, जी, मेरे ग्रैंडसन ने, पोते ने लिखी है, प्रिया कुमार ने लिखी है। फॉर्चुनेटली शी हैज़ कम डाउन दुबई जैसे यस्टरडे, आई इंट्रोड्यूस हर, शी आल्सो कम। तो ये आपके जहन में कैसे है कि मेरा एक बुक होना चाहिए, कैसे आया वो कहानी बताइए। बताएगा। मेरे जितने भी दोस्त थे, जब स्टोरी मेरी सुनते थे, अप्स एंड डाउन इन लाइफ, माई एक्सपीरियंसेस, विजडम, बिट्रेयल्स, बैक स्टैबिंग, जो भी लॉसेस हैं, डाउन्स, ये एक मेरी लाइफ बड़ी ऊपर नीचे रही, बड़ी कलरफुल रही है, नॉट ओनली बिजनेस बट पर्सनल ऑल्सो। तो ये सबको मैं सुनाता था, बोला यार राजन यार तू बुक लिख इसके बारे में, बिकॉज योर लाइफ इज सो कलरफुल एंड योर बैकग्राउंड ऑफ योर लाइफ हैज़ बीन ग्लैमर, बिकॉज माई पेरेंट्स have been in the glamour situation because of my मामा JC जैन, उस वक्त जो टाइम्स ऑफ इंडिया जनरल मैनेजर थे, जिन्होंने फिल्म फेयर स्टार्ट किया, फिल्म फेयर अवार्ड स्टार्ट किया। तो मैं बचपन से वो माहौल में बड़ा हूँ, तो तब से देख रहा हूँ फिल्म फेयर अवार्ड फर्स्ट वन शनमुखानंद, मैं गया था बच्चा था। तो वो मेरा बैकग्राउंड में जहन में पीछे ग्लैमर था, फिल्म इंडस्ट्री थी। फिर बड़ा हुआ तो वो फिल्म इंडस्ट्री के साथ, और वो जुड़ा हुआ हूँ फिल्म इंडस्ट्री किसी तरह। एंड में आके फिल्मों में घुस गया, फिर 1990 में 10-15 फिल्में बनाई, और फिर 2000 में छोड़ के दुबई आ गया, 25 साल से यहाँ हूँ। तो ये जब स्टोरी आई तो मंजू करके एक एडिटर थी फिल्म फेयर मैगज़ीन की, तो मेरे को रिजवान मिला, रिजवान ऑन फिल्म फेयर इन मिडिल ईस्ट। तो बोले यार मंजू राजन की इंटरव्यू करो एक फिल्म फेयर के लिए। तो वो आ गई फिल्म फेयर, इंटरव्यू हो गई, छप गया। तो कहते राजन मिस्टर लाल, योर लाइफ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई डोंट थिंक वन इंटरव्यू विल बी इनफ, व्हाई डोंट वी राइट अ बुक। तो मैंने कहा भैया मेरे पास बुक में, मैं तो कंप्यूटर, आई एम नॉट गुड, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, कॉकरोच की तरह है, तो मैं तो टाइम नहीं है मेरे को लिखने। कहता है डोंट वरी, यू कम, यू जस्ट टॉक, आई विल राइट, रिकॉर्ड इट एंड आई विल पेन इट डाउन। मैंने कहा ठीक है। तो आई टोल्ड हर, शी सेड आई विल डू द बुक। तो वो स्टार्ट हो गई, और उस बात को 4 साल हो गए, टाइम नहीं मिलता था, बीच में करते थे। 4 साल में शी इज़ टू बी, बट शी वॉज वेरी परसिस्टेंट एंड आई मस्ट थैंक हर फॉर इट। और पीछे पड़ी रही कि नहीं ये किताब ख़त्म करनी, अभी जाके ख़त्म हुई है, अभी जाके प्रिंटर को गई। तो 4 साल के बाद ये किताब जो है, ये 620 पेज की किताब बनी है, और इसके साथ मैंने एक वीडियो भी बनाया अपना लाइफ का, ये इसका उद्घाटन अभी करेंगे। ये किताब है पूरी, I did it आई डिड इट माई वे। way. But from playboy, so popular boy, how you become that? Playboy or popular boy, I don't know what, but now I become like you, wisdom. अभी मैं सबको ज्ञान बांटता हूँ आपकी तरफ। ज्ञान बांटते प्लेबॉय तो नहीं, ज्ञान बांटते और एक्सपीरियंस बांटते हो अपना। एक्सपीरियंस बांटता हूँ, ज्ञान बांटता हूँ आपकी तरह दादा। आप अपनी लाइफ में भी यंग में अपना, आपकी भी लाइफ थी। इस उम्र में आपके पास कितनी गर्लफ्रेंड? अभी गर्लफ्रेंड नहीं, अभी तो दादा कहानी ख़त्म है, अभी शोकेस है, अंदर खोखला है। हम नहीं सुधरेंगे। नहीं कंपनी ठीक है, अभी कंपनी आसपास जैसे हो तो हम खुश रहते हैं, ठीक है। बट अभी क्या है कि हमारे एक दोस्त थे खटवानी साहब, बॉम्बे में खटवानी, वो बड़ी कलरफुल शर्ट पहन के आते थे। तो मेरे फादर रमी खेल रहे थे उनके साथ, तो बोले खटवानी यार तुम बहुत चमक रहे हो यार, क्या लग रहे हो, सेक्सी लग रहे हो। तो ताश के पत्ते खेलते खेलते कहते लाल ये सेक्सी वन से छोड़ दो, ये ऊपर का ही सेक्स है, अंदर से पूरा खोखला है। तो वो मुझे बात आज तक याद है कि मैंने कहा ये जब सेक्सी आदमी पहनता है कपड़े, इसका मतलब है कहानी ख़त्म है। तो अभी क्या करते हैं, अभी ड्रेस ठीक तरह करते हैं, बस बाकी सुधर के। माई फुल डे दादा पासिस, आई टेल यू व्हाट, आई गेट अप व्हेन आई गेट अप। अब मेरी लाइफ की भी सिचुएशन, आई एम 70, गोइंग टू बी 78 इन 2 months। तो मैंने अभी कम बिजनेस में तो सब सेट हो गया, लाइफ सेट हो गई है, बच्चे देख रहे हैं।
तो मैं अभी क्या करता हूँ, अभी मैं उठता हूँ अपनी मर्ज़ी से, देयर इज़ नो फिक्स टाइम। आई गेट अप, अब कभी 8 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे भी उठता हूँ, बैठता हूँ। मेरा एक डॉग है क्लियो करके, जो आई थिंक इज़ अ रीइंकार्नेशन ऑफ माई मदर। उसकी जो आंखें हैं मैं देखता हूँ कि वो बात करती है मेरे से, तो ऐसे लगता है कि हमेशा मेरे आसपास रहती है। तो मैं 2-3 घंटे उसके साथ बात करता हूँ और 2-3 घंटे उसके साथ बताऊँ जैसे मेरी माँ साथ में हो। तो मैं उसके साथ 2-3 घंटे बिस्किट खिलाया, बात किया, मैं बात करता रहता हूँ, वो मेरे को देखती रहती। तो मेरे 1-2 घंटे बड़े अच्छे निकल जाते हैं, वो मैं अकेला उसके साथ रहता हूँ। 1-1:30 बजे मैं तैयार हो जाता हूँ और नाश्ता करता हूँ। उसके बाद मैं 2 बजे तक ऑफिस जाता हूँ। 2 से लेके 6 बजे तक ऑफिस बैठता हूँ, काम देखता हूँ आज तक। और पूरा कंट्रोल जो है चारों पांचों फैक्ट्री का, बिजनेस का, पूरा मेरे हाथ में अभी भी। कंट्रोल फाइनेंस, कंट्रोल परचेज, एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। मेरे को 700-800 ईमेल आती हैं डेली। डेली 700-800 ईमेल कंपनी की, मतलब हर एक ईमेल जो कंपनी के बाहर जाती है या अंदर आती है, सब फैक्ट्रियों की मेरे पास आती है कैच ऑल अकाउंट। वो मैं पढ़ता हूँ, 700-800 डिलीट करता हूँ, पढ़ता हूँ। जहाँ पे मैंने देखा गड़बड़ हो रही है पकड़ता हूँ। आई स्टिल आई एम वेरी अलर्ट। फाइनेंस कंट्रोल, ईमेल्स, बिजनेस एंड परचेज, ये मैं अभी तक हाथ में रखा है। आई कंट्रोल दैट। 6 बजे मैं घर पे आता हूँ। हमारा एक दोस्त का ग्रुप है, या तो हम थोड़ा पोकर वोकर खेल लेते हैं, फिर मैंने भेजे आपको। हाँ आपने भेजे जो, फिर दोस्तों की कभी डिनर हो गया, पार्टी रख दी। और मेरे तो आपको पता है मेरे को पार्टियों का शौक़ है, मैं पार्टियाँ करता हूँ। अभी बड़ी बड़ी 100-200 आदमी की पार्टियाँ करता हूँ, दिवाली में, बर्थडे पे पार्टियाँ करते हैं। और मुझे शौक़ है क्रूज़ेस का, तो मैं साल में 2-3 क्रूज़ेस पे चढ़ जाता हूँ। मैं आज 35 साल से वही कर रहा हूँ, तो टाइम अच्छा कटता है। और अभी क्या है कि दोस्त अच्छे हैं, कुछ गिनती के, आप जैसे मिलते हैं, बैठते हैं, गपशप मारते हैं, टाइम गुजर जाता है और बिजी रहता है। सो आई कीप माई सेल्फ बिजी। माइंड शुड रिमेन एक्टिव ऑलवेज, एंड वन शुड नॉट लीव योर रूट्स एंड योर वर्क। आपने इतनी मेहनत की है रीगल ट्रेडर में, रीगल टेक्सटाइल्स में, और शुरू से आपने स्टार्ट किया इस चीज़ को फ्रॉम द बेबी। आपकी बेबी है, आप एक बेबी को बड़ा बड़ा हो गया, अभी बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आप कभी इससे डिटैच नहीं हो सकते। आप हमेशा कनेक्ट रहोगे। अभी आज भी आप ऑफिस जाते हो, आप बैठते हो, आपकी सेक्रेटरी, आपके दोस्त, आपके, बट बिजनेस के ऊपर आपकी आंख है। मुझे पता है कि बच्चे दोनों बहुत काम कर रहे हैं, अच्छे संभाल रहे हैं, लेकिन आंख आपकी रहती है हमेशा पीछे की तरफ। ये जब दैट इज़ कीपिंग योर लाइफ, दैट इज़ कीपिंग योर माइंड एक्टिव। और दूसरी बात है, आपको घूमने फिरने का बहुत शौक है। और राजू आपका बेटा मेरे पास आता है, कहता है अंकल आप समझाओ डैड को, मैं इनका पासपोर्ट छीन लेना, मैं इनका पासपोर्ट छीन लूँ। मैंने कहा, कहते, मैं कहा दादा कभी जाते हैं शिरडी, कभी प्रयागराज, कभी मथुरा, कभी किधर किधर किधर, सब मंदिरों में घूम रहे हैं, और इनकी हालत देखो, चलने को इनको मुश्किल है, लेकिन ये जाते हैं सब जगह पे, और सब जगह पे इनका जो चैरिटी चल रहा है सबके ख्याल करते हैं। कहते हैं, मैंने कहा ये जो शक्ति है, ये जो एनर्जी है आप में, ये भगवान ने आपको, दादा खास बाबा ने आपको खास दी है, जो आप इस उम्र में 84 की उम्र में आप इतने एक्टिव हो। एंड गॉड ब्लेस यू एंड टच वुड कि आपको ऐसे ही रखे। बट इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग कि आप एक साक्षात एक 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 यू आर अ पर्सन विद अ हेलो। हेलो समझते ना किसी, यू आर अ पर्सन विद अ हेलो, एटलीस्ट आई सी यू लाइक दिस। सो देर इज़ समथिंग वेरी वेरी ग्रेट दैट यू हैव अचीव्ड इन लाइफ, और मैं उसका 10% भी बन जाऊँ तो मेरी तो ज़िंदगी सेट हो। जो कुछ बने वही काफ़ी है, इससे ज़्यादा बनना नहीं है। बाय द वे, हाउ मच यू मिस दत्त सर? अरे मैंने किया था इमोशन, अभी पॉडकास्ट किया उन पे, वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। मैं रोने लग गया था पॉडकास्ट में यहीं बैठ के। अच्छा। मैं आंखों में आंसू आ गए थे। दत्त साहब के साथ मेरा जो रिश्ता था, वो मेरे ख्याल किसी के साथ नहीं है। जो जितने क्लोज मेरे थे वो, और मैं उनकी जितने क्लोज था, ही शेयर्ड एवरीथिंग विद मी, एंड आई थिंक आई शेयर्ड द मोस्ट डिफ़िकल्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ विद हिम। Not the good years, because I knew him later, but I shared the most difficult years of his life, after his bankruptcy, after his Sanjay Dutt problem, after his political problem, after his other problem. But I was there with him throughout. उनको शिरडी लेके गया मैं, शनि मंदिर लेके गया जब जेल में था संजू, उनके साथ मैं ही था जो, मतलब उनका साथ निभाया। और उनको जब भी फ़ोन करो, मैंने कोई घर की
इनाग्रेशन हवन करना है, बिल्डिंग की हवन करना है, या मेरा बर्थडे या एनिवर्सरी या कुछ भी हो, कहीं भी हो ज़िंदगी में, कहीं भी दुनिया में, वो वहाँ पे पहुँच जाते थे। इतना प्यार था जैसे आपके साथ है। आपको मैं फ़ोन करूँ, दादा ये दिन में पार्टी करते, मैं 8:30 बजे आऊँगा, 9:30 बजे निकल जाऊँगा। दत्त साहब का भी यही था, उनको फ़ोन राजन अच्छा है, मैं पहुँच जाता हूँ। मैं कहाँ पे हो, फिक्र मत करो, मैं पहुँच जाऊँगा। इस टाइप की जो लिंकिंग एसोसिएशन है, ये बहुत कम लोगों में होती है दुनिया में। जैसे आपके साथ है, दत्त साहब के साथ है। और दत्त साहब के साथ तो आपको मैं बताऊं कि देयर वाज, आई हैव नेवर सीन अ मोर लोनली मैन देन दत्त साहब। सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास खालीपन था, एक खालीपन, एक लोनलीनेस थी, विच समझो समटाइम्स आई थिंक आई फिल्ड अप बिकॉज ही यूज्ड टू, उनको वाइन पीने का बहुत शौक था। अच्छा। तो मैं तो पीता ही नहीं, आया वो टी टोटलर ऑल माई लाइफ। तो मेरे को बोला राजन चला वाइन पे, मैं दत्त साहब मैं पीता नहीं हूँ। अरे छोड़ ना ब्रदर, छोड़, क्या बोलते, आपको पता है कैसे बात के, छोड़ चल। उनको वाइन ओपनर नए नए लाने का बहुत शौक था, तो नए हर जगह आते थे, एक बॉटल लाते थे, भाई नया वाइन ओपनर लाया, तो वाइन के साथ खोलते थे, बैठ के पीते। तो मैं उनके साथ 1 या 2 गिलास पीता था, एंड दैट वाज सच अ गुड फीलिंग विथ हिम कि भाई एक एक हल्का होता है ना, जैसे क्लोजनेस, वो क्रिएट हो गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन ही रैंग मी अप 1 वीक बिफोर हिज डेथ, ही वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन। तो मैं उनकी उनकी बिल्डिंग की फ्लैट की ओपनिंग थी, तो कह रहे मैंने यार तेरे बंगले की तरह मैंने जकूज़ी बनाई है मेरे पेंट हाउस में, और पेंट हाउस में हम पाली हिल से सनसेट देखेंगे, बैठेंगे जकूज़ी में, वाइन का ग्लास पी के हम लोग वाइन पियेंगे। वो हो नहीं सका, एंड ही डाइड बिफोर दैट, ही डिडंट इवन मूव टू हिज न्यू हाउस। तो मेरे को 1 हफ्ता पहले एक फ़ोन आया, मैं दुबई में था, मेरे को बोले कि भाई राजन कैसा है, मैं ठीक है। दत्त साहब बोलो। कह रहा तू मेरा भाई है ना, मेरा दोस्त है ना, एंड आई हैव नेवर सीन दत्त साहब टॉक लाइक दिस। मैंने कहा हाँ दत्त साहब क्या हुआ था, ही वॉज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव लाइक यू ना, ही वॉज फीलिंग वेरी लो। तो मैंने कहा दत्त साहब ठीक है, कहते नहीं नहीं यार तू जस्ट टेल मी दैट यू आर माई फ्रेंड माई ब्रदर। आई सेड यार दादा आई एम ब्रदर, दत्त साहब आई एम हियर। कह रहा दिल टूट गया यार, दिस इज़ 1 वीक बिफोर हिज डेथ। मैं क्या हुआ दत्त साहब, कह रहे नहीं यार दिल टूट गया यार, बताइए जो मैंने बच्चों को पाल के बड़ा किया, जो अभी एमएलए अभी मिनिस्टर बन गए, सब जो भी इनके जो थे चेले वो सब मिनिस्टर बन गए हैं, और मैंने कांग्रेस पार्टी में इतने साल अपनी ज़िंदगी दे दी, मेरे से बड़ा बुरा हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने कांग्रेस में ले लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता ऑल ओवर। तो इन्होंने उनको ले लिया है, और मेरे खिलाफ इन्होंने केस किए थे, उसको ये आदमी को ले लिया। मेरा दिल टूट गया यार। और 1 हफ्ते के बाद उनकी डेथ हो गई। अब एक आदमी जो पूरी ज़िंदगी जिसने फ़ाइट की है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, बैंकरप्सी, रेशमा और शेरा बनाई, चली नहीं, घर गिरवी हो गया, सब गया, लाइफ फिर स्टार्ट की, नरगिस की बीमारी कैंसर की, उसकी डॉटर इन लॉ रिचा की बीमारी कैंसर की, संजय के प्रॉब्लम, संजय का जेल, संजय का ड्रग, इतनी लाइफ में फ़ाइट किया उन्होंने। अच्छा उनका प्राइवेट प्लेन क्रैश हो गया था मुकेश पटेल का, उसमें जो बच्चियों को बुलाया खुद जल गए थे, वो 6 महीने हॉस्पिटल में थे। इन्होंने इतना चेहरा मैंने देखा है, लेकिन इन्होंने अपना वो ग्रिट नहीं छोड़ा। यहाँ पे जब मैंने देखा, मैंने कहा दत्त साहब के ये मैंने सिचुएशन या ये फेस देखा नहीं। और एक 1 वीक लेटर ही डाइड, ये इसलिए डाइड इन स्लीप। तो मैंने वो छोटू को बोला जो उनका सर्वेंट था, मैंने कहा क्या आई कुडंट गो देयर बिकॉज आई वाज इन दुबई, आई कुडंट रीच देयर। तो बोले कि रात को वो उनका जो गोल्डन रिट्रीवर जैसे मेरा क्लियो है, उनका भी कुत्ता था, वो बारियों में जाकर रात को वुल्फ की तरह आवाज़ दे रहा था, वो आवाज़ देते ना जैसे, कहते वो रात को पूरी रात को वो घूम रहा था और सब बारियों में जाके चिल्ला रहा था। तो मैंने कहा इसके छोटू को बोला क्या हो गया इसको, क्यों चिल्ला रहा है। कहते ये जब किसी की मौत आती है ना तो ये कुत्ते को सेंस होती है, तो ये उसके लिए तो नहीं रो रहा है शायद, इसके लिए। देखिए यार देखो मैं हूँ अकेला और तुम हो, और तो घर में कोई है नहीं,
और वो रात को सुबह उठे 3-4 बजे, पसीना पूरा है, पजामा उनका, कुर्ता गीला, चाय बनाई, नहाए, कुर्ता पजामा चेंज किया, सो गए उठे नहीं। और उठे नहीं। तो ये सिचुएशन और दत्त साहब की, तो ये जब बातें मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, और आज भी मेरे हॉल में किसी की फ़ोटो नहीं है। मेरे हॉल में आपने देखा है कि सिर्फ दत्त साहब की फ़ोटो है, और मेरे ऑफिस के कैबिन में दत्त साहब की फ़ोटो है। और उनके साथ जो मैंने साल गुजारे हैं, वक्त गुजारा है, वो मैं इतना इतना सीखा हूँ, और ऊपर वाले की में इतनी मेहरबानी है कि उनके साथ मुझे मौका मिला, जैसे आपके साथ मौका मिला वक्त गुजारने का। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को इतने अच्छे अच्छे लोग लाइफ में मिले हैं। बुरे तो मिले हैं, वो तो आते हैं बट अपने आप निकल जाते हैं, लेकिन अच्छे लोग जो रहे हैं वो, आई एम ब्लेस्ड, एंड आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ दत्त साहब, यू एंड ऑल द अदर्स हु हैव बीन in my life. I've learned so much from you. So this is the reason why. After leaving Bombay and you settled on Dubai 25 years, what is your experience in Dubai 25 years? That is the reason I left Bombay in 2000. मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा था, बहुत ही अच्छा चल रहा था मेरा जो ITL का बिजनेस, कंपनी का बिजनेस, 5 ऑफिसेस थे, बिजनेस था, बंगला अच्छा था, फिल्में मेरी चल रही थी, शोरूम थे, इटालियन फर्नीचर, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद मेरी हो गई इनकम टैक्स रेड, और दूसरा, जब फिल्में सक्सेस होती हैं तो उस वक्त का टाइम था जब अंडरवर्ल्ड थोड़ा सा तंग करने बैठता है जब, तो जब ये गुलशन कुमार के साथ हुआ, और जम्मू सुगंध के साथ हुआ, और दिनेश गांधी और बाकियों के जो भी फिल्में प्रेजेंट करते थे या बनाते थे, मैंने कहा भैया मैं रह गया हूँ एक अकेला, तो और मेरे को जब फ़ोन आने चालू हो गए तो मैंने कहा यार ये क्या ज़िंदगी है, एक तरह से साला इनकम टैक्स पीछे पड़ा है, दूसरी तरह से ये पीछे पड़ा है, और हमेशा आई एम लुकिंग ओवर माई शोल्डर। मैंने कहा ये कोई लाइफ नहीं है। तो एवरीथिंग था, सब कुछ थी, दोस्ती थी, फिल्में चल रही थी, सब कुछ था, पैसा था, सब कुछ। मैं कहा यार ये लाइफ नहीं है। तो मैं तंग आ चुका, फ्रस्ट्रेटेड था। और जब इनकम टैक्स रेड हुआ तो एक हफ्ते के बाद मेरा 50th बर्थडे था, तो मैंने सब प्लानिंग की थी, कार्ड चले गए थे सब, एक हफ्ता पहले रेड हो गई। उसके बाद जब रेड हुई तो उस वक़्त मेरे को हिल गया मैं एकदम। तो मैंने बोला भैया कमिश्नर को, भैया मेरे पार्टी, कहते डोंट कैंसिल योर पार्टी, यू आर अ नोन नेम इन बॉम्बे, यू मस्ट हैव दैट पार्टी बट पे एवरीथिंग इन चेक। तो लीला में पार्टी थी, दिनेश नायर का होटल था, मेरा दोस्त है। तो उस पार्टी पे जो स्टेज पे जनता है, शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त, मुकेश अंबानी, मीता अंबानी, कपिल देव और नागार्जुन, और सब जितने भी नाम थे, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, 500 लोग। तो सब बोलते हैं यार ये साला कौन है जिसके एक हफ्ता पहले रेड हुई है, और एक हफ्ते के बाद ये पार्टी रख रहा है 500 आदमी की। तो ये सब शोशा कंटिन्यू का ड्रामा था पूरा सामने। तो फिर मुकेश ने मेरे को बोला कि यार कल छाप दे मिड डे में, कि ये फ़ोटो के साथ छाप दे। तो फ़ोटो आ गई है कि एक हफ़्ता पहले फ़ोटो की थी, राजन लाल की रेड हुई, एक हफ्ते के बाद फ़ोटो आई कि 50th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये सब दौर देखा, बट अल्टीमेटली मेरा अंदर से मन नहीं मानता था कि कुछ देयर इज़ गॉट टू बी अ बेटर लाइफ। तो मैंने बोला यार लेट्स ट्राई दुबई। तो दुबई में मेरे को चांस मिला, मैं आया। दुबई में मेरे एक दोस्त है सलीम खान, उसने मेरे को अजमान में अपने पैसे से फ्री जोन लाइसेंस ला के दिया। मैं पैसा एक भी नहीं लाया था इंडिया से, पैसे थे, मैं पैसा स्टार्ट लाइफ अगेन एट 53। मैंने कहा 53 आई केम, आई स्टेड इन बैसान अपार्टमेंट एट 90 दिरहम्स अ डे। अपना अंडरवेयर खुद धोता था, मैगी नूडल खाता था, और लिफ्ट लेता था। मेरी फ्रेंड थी शुभा करके, जो संजय मांजरेकर की सिस्टर, वो अजमान जाती थी। तो बर दुबई से अजमान डेली लिफ्ट लेता था 2 साल तक, और मैंने वहाँ पे वेयर हाउस लिया और ट्रेडिंग शुरू की, जो मैं हैंगर की करता था। 2 साल मैंने रगड़ के काम किया, ये अंडरवेयर धो के, मैगी नूडल खा के। वहाँ से मैंने फिर पैसा बनाया, फिर जबल अली में फैक्ट्री ली। फैक्ट्री लेने के बाद एक पहली गाड़ी खरीदी, उधर मेरे पास 4 मर्सिडीज़ गाड़ी, इधर मेरे पास एक भी नहीं। टोयोटा टीडा ली छोटी वाली, फिर छोटी प्राडो ली, और खुद स्टार्ट किया लाइफ ऑल अगेन एट 53। एंड आई सेड आई विल नॉट टेक हेल्प, आई विल मेक इट ऑन माई ओन, लाइक आई स्टार्टेड विद 500 रुपीज़ इन 65 इन इंडिया। तो सेकेंड टाइम मैंने बनाया, फैक्ट्री शुरू की, और फिर कारवां चलता गया, 4-5 फैक्ट्रियाँ हो गई,
बॉम्बे का पूरा बेच दिया, पूरा बिल्डिंग प्रॉपर्टीज़ बंगला सब बेच बाज के मैं इधर सेटल हो गया। और इधर जो मुझे ज़्यादा सुकून मिला है, आई डोंट केयर आज वो प्रॉपर्टी जो मैंने बेची है आज शायद 500 600 हज़ार करोड़ की होंगी जो भी है, बट आई एम नॉट फीलिंग बैड। मेरे को जो सुकून मिला है और जो हैप्पीनेस मिली है इधर और जो लोग मिले हैं, ये अब मेरा घर बन गया। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री। इंडिया में स्ट्रेस फ्री लाइफ थी, स्ट्रेसफुल लाइफ थी बड़ी, बहुत बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ, बहुत लफड़े थे, बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन वो अपना घर था एक ज़माने में। तो वो भी दिन थे, ये भी दिन है। तो वो दिन अच्छे कट गए जो लिखे थे, अब ये दिन जो हैं वो कट जाएंगे। तो दिस इज़ द रीज़न वाई आई शिफ्टेड हियर, बट आई हैव नो रिग्रेट्स फॉर मूविंग हियर एंड गिविंग अप एवरीथिंग दैट आई हैड मेड देयर। तो दिस तब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान में जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सौ जहाँ कहाँ? जाना कहाँ। अब वो रास्ता तो जब भी मैं जाता हूँ सोनापुर में, किसी की अब राम बक्सानी की कोई डेथ या किसी की दोस्तों की, तो मैं गाड़ी में बैठ के सोचता हूँ भैया एक दिन गाड़ी में नहीं आना है। मैंने वहाँ बोर्ड लगाया हुआ है, मैंने वहाँ बोर्ड लगाया हुआ है, मंजिल तो मेरी यही थी, मंजिल तो मेरी यही थी, आते आते उम्र बीत गई। बिल्कुल। तो मैंने कहा गाय कोई एक दिन वहाँ गाड़ी देखा में नहीं साईं का मंदिर, देखा साईं का आना। मंदिर? साका में आपके साथ ही गया था, सिंह का मंदिर जो बना हुआ है, साक्षात है। इतना ब्यूटीफुल मंदिर है और क्या ब्यूटीफुल बनाया आपने शमशान वहाँ पे, क्रेमेटोरियम। अमित आपने जो काम किया वो तो कोई यू हैव नोबडी कैन। आपका हिंदू टेम्पल देखो कितना बना है beautiful। God bless my children are there on my footsteps. राजू और बच्चों ने, विक्रम ने इतना काम किया My daughter-in-law, she taking it. एवरीबडी Yeah, they are taking it. I'm happy at least they follow father's footsteps. मैं खुश हूँ। You are blessed. Both your children, your daughters-in-law, everybody are so good. Your grandchildren, ये सब blessing है आपकी। जो बच्चे फैमिली है ना जो आपकी इतनी प्यार करती है और आपके साथ है, आपके ये कुछ कर्मों का या जो भी किया है आपने लाइफ में, ये सब उसका फल है और कुछ नहीं। What in the finally you give message to the young generation? आप यंग जनरेशन का मैसेज देंगे? यंग जनरेशन का मैसेज है किताब में है। ये किताब मैंने लिखी यंग जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, इसमें जो गलतियां जो है ना दादा आदमी करता है जवानी में, जिसका भुगतना पड़ता है बच्चों को, ये गलत काम किया मैंने। इसका मैंने आई हैव एडमिटेड कि मैंने जो भी किया लाइफ में, जो भी हूँ मैंने गलतियाँ बहुत की हैं और गलतियों से सीखा है। बट वो गलतियों से क्या होता है कि मेरे बच्चे हैं या वाइफ है या फैमिली है या फ्रेंड्स हैं, उस वक़्त हम 21 22 25 साल में हम अपने तैश में रहते हैं कि मैं नहीं ये मेरा ठीक नहीं है, मैं ऐसे करूँगा। आप रियलाइज़ नहीं करते हो कि आप बच्चों की लाइफ, वाइफ की, पेरेंट्स की लाइफ कैसे ख़राब कर रहे हो। यू आर अफेक्टिंग सो मैनी लाइव्स बाय मेकिंग वन रॉन्ग डिसीजन। अब जब मैंने घर छोड़ा, मैरिटल होम छोड़ा जब 80 में, बच्चे मेरे छोटे थे। अब वो मैंने बच्चों का पूरा जो ब्रिंगिंग अप है वो देखा ही नहीं। अब बच्चे जब बड़े होते हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू ग्रो अप लाइकिंग द फादर कि मैंने बाप लाना छोड़ दिया था। तो ये सब गलतियाँ आपको महसूस होती है। उसके बाद आप ट्राई करते हो। अभी जैसे मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ हैं, तो उन्होंने रियलाइज़ किया मेरा बाप जितना बोला गया था माँ ने या दोस्तों ने कि इतना हरामी नहीं है, ही इज़ नॉट अ बैड मैन, दे वांट टू नो द फादर। तो ये गलतियाँ हुई हैं और ये मेरी इस बुक में गलतियों की, इस बुक इज़ अबाउट माई गलतियाँ इन लाइफ, माई मिस्टेक्स। इट्स नॉट अबाउट कि मैंने ये किया वो किया, इट्स अबाउट द गलतियाँ वन मेक्स। तो दिस बुक इज़ फॉर दैट। और ये गलतियाँ जब आदमी करता है, ये लोगों के लिए सीख है कि भाई ये गलतियाँ जो है आप सोच समझ के आपको, यू शुड नॉट बी। आपके ऊपर किसका कंट्रोल नहीं था क्या? हैं? आपके ऊपर किसका कंट्रोल नहीं था क्या? किसके ऊपर? आपके ऊपर किसका कंट्रोल? जैसे मैं, मेरे बेटे के ऊपर मेरा कंट्रोल है। नहीं, मेरा कंट्रोल था, हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे बच्चे बचपन में मेरे साथ थे ही नहीं। बचपन में मेरे बच्चे माँ के साथ पले हैं, बड़े हुए हैं। अभी मैं क्या कंट्रोल करूँ उनको? वो बोले आप कौन है? तो इसलिए जो जब वक्त आया, जब आप गलती करते थे आपको कहने वाला कोई नहीं था क्या? कहने वाले थे सब, लेकिन हम तो सर वो टाइटल बुक का क्या है? टाइटल बुक का है डिड इट माई वे, नहीं तो हाईवे। तो मैंने टाइटल का बुक ऐसे रखा है कि मैंने जो भी किया मैंने अपने मन मर्जी से किया, मैं अपने ढंग से करूँगा। मेरे को कोई बोलने वाला है ना बाप ना माँ ना कुछ, मैं जो करूँगा अपने आप का। अपने मन मर्जी से क्या किया? गलतियाँ की, गलतियाँ की,
कि कामयाब हुए? गलतियाँ की, कामयाबी भी आई, गलतियाँ भी की, कामयाबी भी आई, लेकिन एंड में क्या रह जाता है, आपकी जो फैमिली है, बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ा है, उनके ऊपर दे हैव ग्रोन अप विथ अ वेरी इनसिक्योर डिफरेंट फीलिंग अबाउट देयर फादर और व्हाट इज़। अभी तो खैर अलग है, मैंने आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई मेड अप विद देम टू एक्सप्लेन टू देम कि भाई जो भी हुआ वो मेरी गलती थी। मैंने मान ली, मैं वाइफ को जाके या जो भी मेरे बाकी रिलेशनशिप थे सबको मान लिया, भैया मेरी गलती थी, जो मैंने किया गलत किया। तो एक मानना बहुत बड़ी बात है, और वो भी पब्लिकली मानना बहुत बड़ी बात है। आई थिंक दैट इफ आदमी रियलाइज़ कर जाए ना, तो आई थिंक आज सुकून मिलता है। मेरे को आज कोई गिल्ट फीलिंग नहीं है। तो ये सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? हुआ बिल्कुल। दिन में अगर चराग चलाए तो क्या हुआ? क्या हुआ? डू यू थिंक दिस टू लेट टू रियलाइज नाउ? इट्स नेवर टू लेट दादा। अभी आप रियलाइज़ भी करो, आपने इसको ये लेगेसी छोड़ दी है बच्चों के लिए, तो इट्स टू लेट अभी। बट क्या फील करता है आदमी, एंड में अकेला ही रहता है, एंड में अकेला ही है। मैं तो अपने कुत्ते के साथ बैठ के बात करता हूँ एट द एज ऑफ 78। अभी ठीक है, दोस्त हैं, कंपेनियन हैं, जो भी है, लेकिन अल्टीमेटली आदमी जो है अकेला फील करता है। और कुछ शादियाँ ऐसी होती हैं जो चलती हैं, और कुछ शादियाँ जो चलाई जाती हैं। अब 90% ऑफ द मैरिजेज जो हैं वो दे हैव नो, आई नो, आई एम द मैरिज ऑफिसर। yes, they have no life in them, they're nothing, it's a dead animal। तो वो लाइफ, वो मैरिज जो है, वो मेरे को जो है वो somehow I have never been for that। I want to have a relationship or a marriage that has meaning, कि भाई हम दोनों जो हैं, जो फ्रेंड्स बने, कंपेनियन बने, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली साथ हों, दैट इज़ अ रिलेशनशिप। और जो जब नहीं होती मैं निकल जाता हूँ उधर से। तो ये शायद मेरी गलती है, या मेरी भलाई है, या मेरी खुद की इनसिक्योरिटी या फीलिंग है, आई डोंट नो। बट मैंने तो अपनी लाइफ अपने ढंग से। व्हाट आर योर गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स? यस, व्हाट आर गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स? yes, good habits is I've met people like you and that's all, and I'm a teetotaler. Bad habits are that I've had my share of relationships, and I've had my share of ups and downs, and betrayals and backstabbing, and bad habits में तो दिल साफ है। मन अभी सुधर गए? सुधर गई, पक्का? पक्का। जो प्रॉमिस? जो जो दिल में यू आर स्पीकिंग बिफोर द पब्लिक? हाँ, जो दिल में है वो जुबान पे है। आई नो। मैं तो आपको पता है, आप जैसे मुंह फाट हो, आप तो सामने किसी को भी बोल देते हो कि भाई जो है, वो तुम ड्रामा क्वीन हो, तुम ये हो, तुम वो, आप मुंह पे बोल देते हो। मैं भी आप की तरह ही हूँ, जो मुझे फील करता है वो सारा ड्रामा कर रहा है, उसको मुंह पे बोल देता हूँ। अच्छा लगे नहीं लगे चल में जाए, इट्स नॉट माई लॉस, इट्स योर लॉस। मैं तो ये सोचता हूँ कि भैया जो हमारे साथ हैं, इफ़ दे आर विथ यू एंड दे वांट टू बी विथ यू, it is good. If they don't, and if you guide them or advise them, even though it may not sound very good to them on their face, it is their loss। मैंने कहा जाओ, मैंने तो तुमको समझाया था बट तुम नहीं सुने, तो you give them a long rope to hang themselves। तो हम खुश हैं, हम बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई आएगा और प्यार देगा तो हम प्यार देते हैं, प्यार नहीं देगा तो ठीक, हम खुश रहते हैं अपने पास। ये तो मालूम आपको ज़िंदगी बेवफा है, एक तो टुका के तेल लेगी। तो व्हाट सेफ्टी यू डन फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर चिल्ड्रन? I have done enough for myself and my children. I have secured them। नो रिग्रेट? नो रिग्रेट? नो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स। मैंने अपनी जो गलतियाँ थी उनको बात करके बुला के बोल दी हैं, जो मेरी खामियां थी बोल दी, और जो अच्छाई है मैंने कहा तुम पहचानो, वो अच्छाइयों को तुम पहचानो। अगर मेरे में कोई अच्छाई है और कुछ मेरे से सीखना चाहते हो, यू वांट टू एम्बॉडी समथिंग, वो तुम सीखो, और वो अपने आप सीखेंगे तो ठीक है, नहीं तो भैया एक दिन हम आपकी सोनापुर में जाना ही जाना है। दैट लास्ट मंजिल, वो तो दैट लास्ट जर्नी इज़ ऑलवेज देयर। और मेरे फादर जो है वो कहते थे कि भाई आदमी की जो रेपुटेशन है और वेल्थ से नहीं गिनी जाती, आदमी की रेपुटेशन गिनी जाती है कि कितने लोग उसके जनाजे पे जाते हैं, हाउ मेनी पीपल आर प्रेजेंट एट हिज फ्यूनरल। दैट शोज़ द importance and the goodness of the person। ये मुझे फादर की एक कहावत याद है। और दूसरी जो कहावत याद है वो हमारे हॉल में एक फ्रेम लगा हुआ था, मैं बचपन में समझता नहीं था, उस पर सारी
दो सेंटेंसेस लिखे थे, फर्स्ट प्लान योर वर्क देन वर्क योर प्लान। तो ये मैं बचपन में सोचता था, मैं पूछता था, मैंने कहा ये क्या लगाया हॉल में, कि दो सेंटेंस है, कुछ समझ नहीं आता। आज समझ में आता, फर्स्ट प्लान योर वर्क देन वर्क योर प्लान। और मेरे दो बाप थे, दो माँ थी बचपन से। आई 2 फादर्स एंड 2 मदर्स। तो ये जो दो बाप और दो माँ थे, ये दोनों दोस्त थे, रिश्तेदार नहीं थे। भल्ला और लाल, ये दो दोस्त थे, स्कूल से साथ में रहे, साथ में पढ़े, साथ में शादी की, साथ में जिए, साथ में मरे, और दोनों साथ में थे। एक था फर्स्ट प्लान योर वर्क, मेरे फर्स्ट फादर भल्ला साहब, और दूसरा वर्क योर प्लान वो लाल साहब। वन वॉज द थिंकर, अदर वॉज द एक्शन मैन। ये इनकी टीम थी, और दैट टीम वॉज सक्सेसफुल ऑल देयर लाइफ। तो ये मैं बचपन से देखा है। माएँ दो थी, बाप दो थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं मैंने किताब में लिखी हैं कि क्या क्या सीखा है, उसके अप्स एंड डाउन, और दोनों की कैटेगरी चॉक एंड चीज। When you retire, हाँ, when you will retire, आई विल नॉट रिटायर, till you're tired, आई विल नॉट रिटायर, till you're tired. यस, आई विल डाई विद माई बूट्स ऑन। तो जिस दिन मैं रिटायर वर्ड यूज़ किया और घर में बैठा, उस दिन ख़त्म, आदमी ख़त्म। ये तो मैं सबको बोलता, मैंने कहा भैया नेवर रिटायर, योर माइंड हैज़ टू ऑलवेज रिमेन एक्टिव। जिस दिन आप घर पे बोले और अपने आप को बोल जाए नहीं मैंने रिटायर हो गया हूँ, उस दिन आप मर गए। दैट्स द डे यू डाइड। सो आप 2 घंटे जाओ, 3 घंटे जाओ ऑफिस में, पता करो क्या हो रहा है, थोड़ा चीखो चिल्लाओ, बात करो, प्यार करो, दैट कीप्स यू गोइंग। अब जो आदमी ने, आपने इतनी मेहनत से एक एम्पायर खड़ी की है, और मैंने भी जो छोटी सी एम्पायर खड़ी की है, वो आप बच्चों को तो सौंप दिया, ठीक है, लेकिन आप पीछे एक हॉक की तरह देख रहे हो। आपकी हॉक है यार, पूरी पिक्चर देख रहे हो। आप जाते हो 3 घंटे के लिए, वो 3 घंटे में आपका जो काम होता है दादा, आई कैन गारंटी यू मस्ट बी फुल डेज वर्क ऑफ एनीबडी एल्स। क्योंकि आप टक 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 सब देखते हो, आपको पता है क्या हो रहा है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ, नहीं हुआ, ख़त्म हो गई बात। तो दीज थिंग्स आई एम डूइंग एंड आई दैट इज़ कीपिंग मी अलाइव। मैं ऑफिस जाता हूँ, आई कम अलाइव। मैं आज भी कस्टमर के पास जाता हूँ, मैं फील वेरी अलाइव। मैं कहा चल मुझे कस्टमर के पास ले चल, आई वांट टू विजिट, आई फील वेरी अलाइव। तो ये चीज़, ये तो अभी मरने तक चलेंगी। जब तक मेरा हाथ पैर चल रहे हैं तब तक ठीक है, नहीं तो व्हील चेयर, स्कूटर पर जाएंगे ऑफिस में। What do you say about Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, I think, is a great asset to the country. Nobody is perfect, but he has too much on his hands, and when he took over, there was a lot of cleaning up to do, which he has taken more than 10 years to do, and he's still doing it. But I think he's doing a great job for the country, and I think we need him for the next 10 years or so to do what India wants to become. And we are very proud, and I'm very proud to be an Indian. And what he has done is something incredible. But what our ruler, His Highness Sheikh Rashid Al Maktoum has done is something which is beyond control, beyond imagination. And what a visionary he is. And what he has done in the last, you have seen in front of your eyes, and I have seen in front of my eyes in last 35-40 years, I think nobody can achieve. और ये याद है दादा, एक वो हमने वो मनोज को बुलाया था, पेंटर को, जो मुंह से पेंट करता है, उसके हाथ कटे हुए हैं, तो उसने वो मुंह और पाँव से पेंटिंग बनाता है। आपको बुलाया था मैंने एक मैं फंक्शन में। अभी तक एक फ़ोटो पड़ी है आपको शेख मेरे मोहम्मद? पास वो क्या किया, मैंने कहा आपने बोला था एक शेख नयान की बनाओ, एक राम बख्शानी की बनाई, एक मोदी साहब की बनाई, एक आपकी बनाई। तो उसने जब मेरे को बना के दी मेरी फ़ोटो, मैंने कहा भैया फर्स्ट थॉट, मैंने कहा एक शेख मोहम्मद की बनानी फ़ोटो। उसने शेख मोहम्मद की फ़ोटो बनाई है, हैंड पेंटेड, जो मेरे घर पे पड़ी है। आई शोड इट टू यू, आई विल डिस्प्ले इट इन माई पॉडकास्ट। वो पिक्चर इतनी लाइवली है, वो मेरे पास पड़ी है। मैंने कहा दादा मेरे को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए कि वो मैं इस आदमी को जिसने बनाई है उसको लेके जाऊं और उनके हाथों से शेख मोहम्मद को प्रेजेंट करूं। ये मेरी इच्छा है, आज तक ये पूरी नहीं की आपने। ये मेरे को एक इच्छा है मेरी कि ये जो पेंटिंग पड़ी है मेरे पास, ये उनके हाथ में दे दूं
उनको। तो ये आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए, मैं आपको I'll do बता, it. I'll do it. प्लीज़ डू इट। I'll do it. We go. These are the things which We go to his office. Office. he is absolutely a visionary, and I am his idol. He's my idol. And what he has achieved and what his dreams are and what he has done to this city and to the country is something which is beyond imagination. And I am a fan of his from the year 2000 when they announced the Palm Jumeirah project. जब पाम जुमेरा अनाउंस किया था, मुझे याद है, मैं आया था नया नया, तो उस वक़्त वो दुबई मरीना में एक छोटे से वो क्या कंटेनर टाइप के आदमी में वो वहाँ पे उनका ऑफिस था नकील का। तो उन्होंने खाली एक वो मॉडल बना के रखा था। तो दे वर मार्केटिंग पाम जुमेरा इन द सी 10 किलोमीटर। तो सब लोग हंसते थे, भैया ये तुम 10 किलोमीटर में तुम बंगले बनाओगे, इस बीच दोगे, क्या बात। मैंने कहा नहीं, मैंने वहाँ पे 2-3 बंगले खरीदे उस वक़्त 2001 में, और सब बोलते थे पागल है। मैंने कहा नहीं, आई बिलीव इन दिस मैन्स विजन। इसने जब बोला है, व्हेन ही हैज सेड दैट ही विल मेक द पाम जुमेरा इन द सी, he will make Palm Jumeirah in the sea, and he will put Dubai on the map of the world with this project. And everybody at that time laughed at me. I said, no, he will do it. And he did it. And today I am staying there in the Palm Jumeirah. And everybody said, yaar, Aryan, very kya? मैंने कहा, I have a feeling, एक confidence होता है ना एक आदमी पर. He is a great man. He is absolutely great man. I admire him. He has planned 2050. Yes. Foresight. Yes, his foresight, his vision is everything. I mean, he is the minister of happiness, दादा। मैं कभी ज़िंदगी में, आपने सुना है इंडिया में मिनिस्टर ऑफ हैप्पीनेस? मैंने तो नहीं सुना। अब ये मिनिस्टर ऑफ हैप्पीनेस क्या होता है? इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम यू कैन गो टू देम एंड से दैट दिस इज अ प्रॉब्लम। I mean, there are situations where I've heard and seen that he himself, sometimes at 4 in the morning, 5 in the morning, 7 in the morning, actually goes and stands in the line with the bank or to the government office to see if the people are being courteous and we treating them well. Who does that? And the only man I have seen who drives his own car without security. आपने देखा है कभी सिक्योरिटी? नहीं देखा। वो अपनी मर्सिडीज़ या जो भी गाड़ी में खुद चलाते, खुद गाड़ी पार्क करके जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना खाएंगे, लोग मिलेंगे और अपने लोगों से बातें करते हैं। वो कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सीक्रेट सर्विस नहीं।